بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی تک کوئی نہر نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو ہوگی، جبکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہوں، وزیر اعظم نے ہماری شکایت کو سنا اور اہم فیصلہ کیا۔ ہم نے جو طے کیا ہے آج کی اس میٹنگ میں، آج اس بات کا ہم نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج ہم نے یہ طے کیا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو بروز جمعہ بلائی جا رہی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کے مذکورہ فیصلوں کی تائید کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ ہم نے نہروں کے حوالے سے کیا ہے، اور آج ہم مل کے کوئی فیصلہ اس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں، صرف اتنا طے کر رہے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر پانی کے معاملے میں نیا نہریں نہیں بن رہے ہیں۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں، CCI میٹنگ کو لک فارورڈ بھی کر رہا ہوں۔ دوسری جانب دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف سٹی کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری رہی۔ وکلاء نے عدالت کے تمام داخلی راستے بند کیے رکھا۔ وکلاء اور عدالتی عملے کے علاوہ سب کا داخلہ بند رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر دھرنے پر بیٹھے وکلاء کا نہروں کی منسوخی کے نوٹیفیکیشن تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ ببل لوبائی پاس پر دھرنے کا اثر کراچی کی عدالتوں تک جا پہنچا۔ کراچی سٹی کورٹ میں ہڑتال چوتھے روز میں داخل۔ وکلاء نے احتجاجاً عدالت کے دروازوں پر تالے ڈال دیے، سائلین کو بھی اندر جانے نہ دیا۔ کراچی بار کے سابق نائب صدر ایڈوکیٹ قادر خان نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ وہ تو ایک 2 ٹوک فیصلہ ہو چکا ہے یہاں جو کانفرنس ہوئی تھی کہ بھئی جب تک وفاقی حکومت کنالز کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے، ہماری یہ ہڑتال جاری رہی۔ کراچی کو اگر جو پانی آ رہا ہے، یہ 3 کروڑ کا شہر جو پانی پی رہا ہے اور پانی جو استعمال کا آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دریائے سندھ ہی سے آ رہا ہے نا۔ کراچی سٹی کورٹ میں وکلاء اور عدالتی عملے کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین سید تابش کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ شناختی کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے کمیشن نادرا حکام نے شہریوں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ شہری بلا ضرورت فوٹو کاپی نہ کروائیں، صرف اصل دستاویزات ساتھ لائیں۔ فوٹو کاپی ساتھ لے کر آنے کی ضرورت نہیں۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ خبردار، ہوشیار، بلا ضرورت شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نہ کرائیں۔ نادرا نے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا۔ واضح کیا کہ شناختی کارڈ کو صرف شناخت کا ذریعہ بنائیں، اس سے غلط ہاتھوں سے بچائیں۔ شناختی کارڈ کے لیے اصل دستاویزات ساتھ لائیں۔ بے فارم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے لیے فوٹو کاپی لانا ضروری نہیں۔ نادرا کی جانب سے جاری ہدایت نامہ میں بتایا گیا کہ بطور ضمانت شناختی کارڈ لینے یا دینے کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈیفنس نادرا میگا سینٹر سے آنے والے شہریوں نے آگہی مہم کو خوشائند قرار دیا۔ کچھ پیپر ایسے ہوتے ہیں جو یونین کونسل کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہدایت دی ہوئی کہ وہ لا سکتے ہیں پرانے، جس کا نادرا میں ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ادروائز یہ ہماری سیفٹی کے لیے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کوئی کسی بھی بہانے سے آپ سے کہ جی اپنی فوٹو کاپی دے دیں یا کوئی کاغذات دکھا دیں، میں آپ کا یہ کام کرا دوں گا، وہ کرا دوں گا، کوئی کسی کا کوئی کام نہیں کراتا اور دوسری جگہ آپ کے کاغذات کو استعمال کرتا ہے، جس سے آپ کو آگے پریشانی ہوتی ہے۔ نادرا ہدایت نامے کے مطابق دھوکے باز عناصر مالی فائدے، انعامات وغیرہ کا لالچ دے کر شہریوں کی شناختی معلومات یا انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا تمام شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ کیمرہ مین عبدالواحد خان کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ پاکستان انڈیا کشیدگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بادل چھا گئے۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 2206 پوائنٹس کی بڑی کمی کے ساتھ 1,15,019 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار پھر محتاط ہو گئے۔ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 2206 پوائنٹس کی بڑی کمی، کاروبار 1,15,019 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں بلند ترین سطح 1,16,568 جبکہ کم ترین سطح 1,14,661
61 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि पाक भारत ताल्लुकात में जारी कशीदा सूरत-ए-हाल के बाइस सरमायाकार एतमाद खो बैठे हैं और शेयर्स फरोख्त करने लगते हैं। देखिए, ये रोल ओवर वीक है, रोल ओवर वीक में एडिशनल प्रेशर होता है और लास्ट 2 डेज रह गए हैं, पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं रोल ओवर में। फिर इंडिया पाकिस्तान टेंशन की जो खबर आई है, इसने मार्केट के ऊपर जलती के तेल का किरदार अदा किया। हमने देखा कि इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग की। जब भी इस तरह की सेंटिमेंटल डेवलपमेंट्स होती हैं, खासतौर पर नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है और बगैर सबूत के जिस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, उसकी वजह से आज इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग की है। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि रोल ओवर हफ्ता होने की वजह से प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी देखा गया, जिसने मंदी को मजीद गहरा कर दिया। अभी मार्केट तकरीबन 900 पॉइंट माइनस में ट्रेड हो रही है और अगर यही सिचुएशन रही तो अभी हम देखेंगे कि इंशाल्लाह मार्केट काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। जिस तरह आपने देखा कल जो IMF की तरफ से जो आउटलुक आया था कि जो ग्रोथ को लेके, तो वो थोड़ा नेगेटिव कल भी माइनस रही और आज जो है वो इंडिया पाक भारत का जो टेंशन है, इसकी वजह से लोग जो है मोहतात हैं, इन्वेस्टर थोड़ा सा मोहतात है। अभी रिजल्ट का सेशन अभी भी जो है बाकी है और इसके साथ साथ रोल ओवर वीक का भी लास्ट मतलब 2 दिन रह गए हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर नजर आ रहा है। मार्केट में अदम इस्तेकाम ने सरमायाकारों को मोहतात कर दिया और आइंदा चंद रोज स्टॉक एक्सचेंज के लिए मजीद चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 5 मई 2025 को होगा। टॉप लाइन रिसर्च ने मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के तहत 69% की राय में शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की तवक्को है, जबकि सर्वे में 31% की राय में शरह सूद 12% पर ही बरकरार रहेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 5 मई को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सरबराही करेंगे। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 69% ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट कमी की तवक्को की है। मार्केट सर्वे में 31% की राय में शरह सूद 12% पर ही बरकरार रहने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक 69% में से 30% की राय में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट तक कमी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरकजी बैंक के पास दिसंबर 2025 तक 200 बेसिस पॉइंट तक कमी की जगह है। माली साल 2026 में महंगाई की शरह 6 से 7% के दरमियान रहने की तवक्को है। सर्वे में कहा गया है कि खाम तेल की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात होंगे, जबकि आलमी मार्केट में डॉलर इंडेक्स गिरने के मनफी असरात हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुलंद तरसीलात ज़र माली मुश्किलात कम करने में मदद करेगा। मार्च 25 में तरसीलात ज़र तारीख में पहली बार एक माह में 4 अरब 6 करोड़ डॉलर मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखना चाहिए। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से ही महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मार्च 2025 में बैंक डिपॉजिट्स मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एक साल में बैंक डिपॉजिट्स में 3,305 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 25 में बैंक डिपॉजिट्स मुल्क की तारीख में पहली बार 31,626 अरब रुपए पर पहुंच गए। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। बैंक डिपॉजिट में बड़ा इजाफा। मार्च 25 में बैंक डिपॉजिट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में बैंक डिपॉजिट में सालाना 11.7% और माहाना 3.8% का इजाफा हुआ। रवां साल बैंक डिपॉजिट में 3,305 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैंक डिपॉजिट 31,626 अरब रुपए तक पहुंच गए। मार्च 2024 में डिपॉजिट 28,321 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में बैंक डिपॉजिट में 1,169 अरब रुपए का इजाफा हुआ। फरवरी 25 में बैंक डिपॉजिट 30,457 अरब रुपए पर थे। मार्च 25 में बैंक डिपॉजिट बढ़कर 31,626 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के शाहीन प्रोग्राम ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी गई ताकि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद मुख्तार बन सकें। 600 से ज़ायद ख़वातीन ने दरख्वास्त दी, जिनमें से 120 का इंतखाब हुआ और 92 ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। कामयाबी की खुशी में कराची में PSO हेड ऑफिस में तकरीब तक़सीम असनाद मुनक़िद हुई, जिसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गुलजार ख्वाजा और जनरल मैनेजर समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। अफसरान का कहना था कि शाहीन प्रोग्राम न सिर्फ ख़वातीन की नक्लो हरकत की आज़ादी है, बल्कि बाइख्तियार पाकिस्तान की तरफ एक कदम है। जापानी कौंसल जनरल की NED यूनिवर्सिटी आमद जापानी किताबें यूनिवर्सिटी को अतिया की। कौंसल जनरल जापान कहते हैं कि किताबों में जापानी सकाफत, ज़ुबान और तारीख के हवाले से तलबा को मालूमात हासिल होंगी। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। पाक जापान दोस्ती मज़ीद मजबूत।
जापान कॉन्सुलेट ने जापानी किताबों का जखीरा NED यूनिवर्सिटी को अतिया कर दिया। जापानी कौंसल जनरल हातोरी मासोरे NED यूनिवर्सिटी पहुंचे। कायम मकाम वाइस चांसलर नोमान अहमद ने इस्तकबाल किया। कौंसलेट की जानिब से यूनिवर्सिटी को दी गई किताबों में जापानी सकाफत, सयाहत और तहजीब से मुताल्लिक मालूमात मौजूद हैं। कौंसल जनरल जापान ने बताया कि पाकिस्तानी तलबा को किताबों के ज़रिए जापानी सकाफत से मुताल्लिक हम आहंग कराना चाहते हैं। जामिया NED में जारी जापानी ज़बान का कोर्स का इनेकाद खुश आइंद है। It came from a wide variety of fields, not only culture but also the politics and economic and the social issues. So students can learn quite many fields of issues. कायम मकाम वाइस चांसलर जामिया NED डॉक्टर नोमान अहमद ने बताया कि जापानी कौंसलेट की जानिब से फराहम करदा किताबों से तलबा की बड़ी तादाद इस्तेफादा करेगी, जबकि जापान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात को समझने में भी मदद मिलेगी। किताबों का अतिया हमारे इदारे को दिया। इस किताब के अतिये से यकीनन हमारे जो तलबा हैं और असातिज़ा हैं वो इससे इस्तेफादा करेंगे। जापान को आम तौर पे हम जानते हैं एक ऐसा मुल्क जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तकरीब में कायम मकाम वाइस चांसलर नोमान अहमद, प्रो वाइस चांसलर तुफैल जोकियो और रजिस्ट्रार गजनफर हुसैन नकवी शरीक हुए, जबकि इख्तिताम पर मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गईं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बताते चलें, मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग, महकमा जंगलात और सैलानी वेलफेयर मुतहरक लियारी एक्सप्रेस वे पर पौधे लगाने की मुश्तरका मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। 3 हट्टी से माड़ीपुर तक 22,000 पौधे लगा दिए गए। तफसीलात उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने का मिशन कम्युनिटी पुलिसिंग, महकमा जंगलात और सैलानी वेलफेयर ने मुहिम शुरू कर दी। लियारी एक्सप्रेस वे पर पौधे लगाने का आगाज कर दिया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ मुराद सोनी बोले, पहले हमने कैमरे लगाए, अब हम पौधे लगा रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे के रूट पर 3 हट्टी से माड़ीपुर तक 22,000 पौधे लगा दिए। देखिए, आज तो हमने 100 दरख्त लगाए, लेकिन आपने 100 दरख्त की हाइट देखी होगी कि 10 से 12 फीट के दरख्त हैं, लेकिन टोटल अभी तक जो हमने इस बेल्ट पे हमने तकरीबन 22,000 दरख्त लगा चुके हैं इसके अंदर, और इंशाल्लाह इसका हमारा टारगेट ये है कि 50,000 दरख्त इसी साल में इसको कंप्लीट करेंगे। महकमा जंगलात के DO मोहम्मद जिशान का कहना था कि हम CPK के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बेहतरीन पौधे दिए। ये पौधे 1 साल में बड़े हो जाएंगे। हम थैंकफुल है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची कि उन्होंने हमें बड़ी साइज के पौधे दिए। तो बड़ी साइज के पौधे का ये होता है कि इसको बस 1 साल के अंदर ये अपने शाखें भी निकालेगा, अपने आप को संभाल लेगा। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर ने कहा कि पौधों को पानी सैलानी वेलफेयर दे रहा है, रोजाना की बुनियाद पर इनकी देखभाल की जाएगी। इसकी देखभाल के लिए CPK की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है और सैलानी की टीम है, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधे पिछले साल लगाए आज वो 8-8 फीट और 10-10 फीट के हो गए। प्लांटेशन ड्राइव में तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने भी हिस्सा लिया। तकरीब के अख्ताम पर कराची पुलिस चीफ और दीगर मेहमानों को शील्ड और अजरक पेश की गई। कैमरामैन इमरान AK के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।